afternoon, beta. Today's topic is density of unit cell and other dimensions of unit cell. You know, in a unit cell, all the edges are equal with the edge length equal to A. And density, all of you know the definition of density is defined as mass per unit volume. Therefore, the density, it is denoted by rho. The density of unit cell will be equal to mass of unit cell divided by the volume of unit cell. So taking these two values, first of all, volume of unit cell. Volume of unit cell will be what? One side that is called edge of unit cell is A in centimeters. And what is the volume? All of you know that volume of a cube is equal to length cube. So here the volume of unit cell comes out to be A cube in centimeter cube. Taking as equation number 2. This is equation number 1, formula density mass by volume. Then the volume of unit cell is A cube. This is equation number 2. Then comes mass of unit cell. This comes out to be Z into M upon Na. Where Z is the number of atoms in unit cell, you know, for simple cubic 1, BCC 2 and FCC 4. M की है, it is atomic or molecular mass. Atomic mass in case of metal and molecular mass in case of ionic compounds. And Na is Avogadro number. So where M upon Na gives the mass of one atom in grams, and mass of one atom in gram multiplied by number of atoms, this will give the total mass of the unit cell. So A cube is the volume of unit cell, Z into M upon Ma is the mass of unit cell, equation number 3. So dividing equation 3 by 2. So dividing mass by volume. The equation की बन चुकी, this equation comes out to be density rho is equal to Z into M upon Na की हो गया mass of unit cell in grams divided by A cube की हो गया volume. The mass by volume comes out to be the density of unit cell, where the units of density is gram per cc when edge length is in centimeter. तो दूसरा पॉइंट की नोट करना है बेटा कि ਜਦੋਂ एज लेंथ सेंटीमीटर से है तो फार्मूला की यूज़ करना है Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए. एक स्पैशल केस है कि एज लेंथ इज़ गिवन इन पीकोमीटर, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ एज लेंथ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਪੀਕੋਮੀਟਰ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ. 1 ਪੀਕੋਮੀਟਰ 10 ਪਾਵਰ -12 ਮੀਟਰ. तो फिर तुसी की करना है, इसे फार्मूले की चेंज करना है कि रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब डिवाइडेड बाई 10 पावर -30 इंटू एन ए. डिनोमीनेटर 10 पावर -30 की है, इट इज़ ए ऑटोमैटिक कन्वर्टर. कि थोड़ी एज लेंथ पीकोमीटर च है ना, तो थले 10 पावर -30 ने मल्टीप्लाई कर लो ਤਾਂ भी थोड़ी जी डेंसिटी वो अपने आप ही किहदे च आऊगी, इट विल कम्स आउट टू बी इन ग्राम पर सीसी ऑटोमैटिकली. तो क्वेश्चन तुसी देखना है कि एज लेंथ सेंटीमीटर च है तो फार्मूला ए वाला लगाना है, तो जे एज लेंथ पीकोमीटर च है तो फिर थले 10 पावर -30 नाल डिवाइड करना है. ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ 100% ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ 5 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ: ਡੈਂਸਿਟੀ, टाइप ऑफ यूनिट सेल, मॉलिकुलर मास, एज लेंथ एंड एवोगैड्रो नंबर. तो पंजां ते 5 टाइप के न्यूमैरिकल्स हैं. तो पहली टाइप का न्यूमैरिकल बेटा ये देखो जो तुहानूं दस्से मैं, हाउ टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. ये क्वेश्चन की गिवन है, ये थोड़ी सॉल्वड एग्जाम्पल है बुक की 14 इन विच यूनिट सेल की टाइप दी हुई है BCC. BCC का मतलब Z इज इक्वल टू 2, अटोमिक मास गिवन है 50 AMU, एज लेंथ गिवन है 290 पीकोमीटर. पीकोमीटर गिवन है तो आप थले 10 पावर -30 का फार्मूला लगावांगे. तो एवोगैड्रो नंबर हमेशा कितना लेना, 6 इंटू 10 पावर 23. वी हैव टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. सिंपल फार्मूला लगाना है Z M अपॉन ए क्यूब, एज लेंथ पीकोमीटर से तो थले 10 पावर -30 लगा लें, मल्टीप्लाई बाय Na. तो पुटिंग दिस वैल्यू 2 इंटू 50 290 क्यूब 3 10 पावर -30 6 इंटू 10 पावर 23. ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਟਿੰਗ ਅਬਵ ਐਂਡ ਡਾਊਨ. ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ. ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਆਲ ਦਿਸ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਵੀ 6.8 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੀਸੀ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ Z M ਐਜ ਲੈਂਥ ਐਂਡ Na, ਤੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ. ਦੈਨ ਕਮਸ question number second type of, that is we have to find the type of unit cell. Second type the numerical ਜਿਹਦੇ 'ਚ type of unit cell मतलब Z कैलकुलेट करना है. ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਲਵਡ एग्जाम्पल नंबर 20 देखनी है बेटा बुक 'ਚ. ਉਹਦੇ 'ਚ क्वेश्चन नंबर की है
क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्वड इन द बुक। एटॉमिक नंबर ਤੁਹਾਨੂੰ given है 27, एज लेंथ given है 4.05 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज 2.7 ग्राम पर cc एंड वी हैव टू फाइंड द टाइप ऑफ यूनिट सेल। Z कैलकुलेट करना है तो एवोगैड्रो नंबर इज़ ऑलवेज दिस। तो फार्मूला सेम यूज़ करना है क्योंकि ये एज लेंथ सेंटीमीटर से तो थले आप 10 पावर -30 नहीं लगावांगे, सेंटीमीटर वाला यूज़ करांगे। ये आप की करना है, Z एक पासे ले लेना तो बाकी दी वैल्यूज़ दूजे पासे ले लैनी है। पुटिंग द वैल्यू Z ऑन दिस साइड, ये सारिया वैल्यूज़ नू कैलकुलेट करांगे तो जी Z की वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 4। जे 4 आ गया तो दैट मीनस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज़ FCC। जे 2 आ जाता तो BCC, 1 आ जाता तो सिंपल क्यूबिक। So this is the second type of numerical. Then third type of numerical is how to calculate the atomic mass in a given unit cell. ये देखना बेटा सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 21 इन द बुक। वो की दिता तुहानू BCC टाइप ऑफ यूनिट सेल, Z इज इक्वल टू 2, एज लेंथ 3 इंटू 10 पावर 8 सेंटीमीटर -8 सेंटीमीटर, डेंसिटी 6.89 एंड एवोगैड्रो नंबर इज 6 इंटू 10 पावर 23। In this question you have to calculate M, atomic mass of the element। तो सेम फार्मूला यूज़ करना है विदाउट 10 पावर 30 क्योंकि एज लेंथ सेंटीमीटर से। तो यूजिंग फार्मूला M इधर आ जाऊगा तो बाकी उधर चले जाएंगे, रो इंटू A क्यूब इंटू NA अपॉन Z। तो यूजिंग ऑल दीज वैल्यू ये तो मैं तुम्हें फुल वीडियो फोटो भी भेजी है बेटा, कैलकुलेट करोगे तो की होगा 8 पावर -8 पावर 3 कितना बन जाना 8 पावर -24, कट करके 10 पावर -1, 3 पावर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 पावर 4, 3 पावर 4 कितना बन जाना 81, 10 पावर -1 इधर आके की बन जाना 0.68। तो 81 इंटू 0.689 कम्स आउट टू बी 56। इसका मतलब इस एलीमेंट का एटॉमिक मास कितना है 56। आयरन का होंगे वैसे, इट मीनस आयरन किहड़े यूनिट सैल मिलता है BCC यूनिट सैल। एंड दैन लास्ट वन इज़ टू कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सैल। एज लेंथ यूनिट सैल की कैलकुलेट करनी है तो ये की एग्जाम्पल ਲਈ ਆਪਾਂ सॉल्वड एग्जाम्पल 25। कॉपर क्लोराइड का यूनिट सैल है, Z इज इक्वल टू 4, FCC टाइप का यूनिट सैल है, डेंसिटी 3.4 ग्राम पर cc गिवन है। दैन कॉपर क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होंगे 99 AMU, कॉपर प्लस क्लोरीन एंड एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 पावर 23। In this question you have to calculate edge length of unit cell। फार्मूला सेम लगाना बेटा Z M A क्यूब अपॉन NA, क्योंकि ये जी एज लेंथ आऊगी वो सेंटीमीटर च आऊगी। तो एज लेंथ दूजी साइड से लैके रो थले आ जाऊगा। तो यूजिंग द वैल्यूज़ A क्यूब जोड़ा तुम कैलकुलेट करोगे ऊपर थले कट करके तो A क्यूब आ जाऊगा 1.93.4 इंटू 10 पावर -24। तो आखिरी द इंपॉर्टेंट स्टैप किहड़ा इहदे च क्यूब रूट। क्यूब रूट तुसी की करना है कि डेसीमल एडजस्ट करके 10 नूं जी पावर च लैके जाना वो 3 ते डिविजिबल होनी चाहिए, क्योंकि 10 पावर -24 तो बनाई आप क्योंकि वह क्यूब रूट कितना आ जाना 10 पावर -8। तो एडजस्ट कर लिया। फिर है गया 193। तो 193 किहदे च आउंदा 5 का क्यूब 125 तो 6 का क्यूब 216। ये 125 तो 216 च आउंदा, इसका मतलब 193 का जिहड़ा क्यूब रूट आ 5 तो 6 दे विच आऊगा। ये हिट एंड ट्रायल मैथड है, क्यूब रूट का कोई एग्जैक्ट मैथड नहीं होंदा। तो हिट एंड ट्रायल मैथड ही लगना है। तो 193 है जिहड़ा 216 के काफ़ी क्लोज है तो 125 तो दूर है। इसका मतलब यदा जिहड़ा क्यूब रूट है 193 का वो 6 तो घट आऊगा बट 6 के आस पास। तो अप्रॉक्सीमेटली वी कैन राइट 5.7। तो एज लेंथ कम्स आउट टू बी 5.7 इंटू 10 पावर 8 -8 centimeter। So these are the main 3-4 types of numericals। Later you have to practice from the book, and if you have any problem then you can call me anytime tomorrow in the class also। Thank you to all of you।